Hello class, I welcome you all once again in your GK class. Okay, so how are you? I hope you all are doing good. So students, before this class we were discussing about some of the chapters of GK and I hope you understood because I got good response in my online classes from you all. So very good for that. Okay, now just begin with the next chapters of the same. Okay, so we have done some of the chapters and today we are going to start with a new chapter, that is page number 41, insect eating plants. Okay, so just open your books and bring your pencils and erasers also along with that and write down the page number, open the book at page number 41 and the name of the chapter is insect eating plants. So we are going to discuss about the insect eating plants. Clear? So I'll just write down the name of the chapter. The name of the chapter is Insect Eating Plants. Page number is 41. So this is the page number of your chapter, that is insect eating plants. Yes, what is the meaning of insect eating plants? इस चैप्टर का मतलब क्या है? जो नेम मैंने लिखा है यहाँ पे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स मीन बेटा जो प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके, देयर आर सम प्लांट्स जो दोज हु ईट इंसेक्ट्स. Plants are not herbivores, they are carnivores also. There are some plants those who eat insects. Okay, तो आज हम उनके प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कार्निवोरस हैं, जो कि ये इंसेक्ट्स खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है. क्लियर? सो नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड आउट अबाउट देम. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स टू. अनस्क्रैबल द वर्ड्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ दीज carnivorous plants. Pick your answers from the help box. Okay, so there is a help box is also given at the bottom of your chapter. ओके, सो देखिए हमारे पास ये अलग अलग प्लांट्स, 5 प्लांट्स के बारे में उन्होंने बात की है. Here we are going to discuss about the 5 plants, those who are insect eating, those who eat insects. Okay, and the second more thing, उन्होंने एक हिंट में उनके स्क्रैबल्स दिए हुए हैं and we have to arrange the words in proper form so that we got the, ताकि हम उसका करेक्ट आंसर लिख सके. So words स्क्रैबल करके दिए हैं and you have to find out the correct answers. Clear? So should we begin with the first one? Let's start. The first one is, the leaves of this plant looks like pitchers with a flap that partially covers the top. Insects are attracted to the sugary trail of nectar. However, once they are inside, they are trapped. Yes. So now in this, they are saying that there is a plant who looks like a pitcher. What is the meaning of pitcher? P-I-T-C-H-E-R. I'm not talking about the picture P-I-C-T-U-R. Pitcher, P-I-T-C-H. I'm talking about this picture. Spelling this picture का मतलब इस पिक्चर की जो P-I-T-C-H-E है, what is the meaning of this picture? This picture means घड़ा, मटका जिसको हम बोलते हैं. जो घड़ा होता है ना, पिक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, पिक्चर, दैट इज मटका, जिसको सुराही भी या कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पिक्चर. द पिक्चर मीन्स घड़ा, या जो घड़े की शेप में हो या सुराही की शेप में हो, दैट इज पिक्चर. क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट. देखिए एक प्लांट है जिसकी जो शेप है दैट लुक्स लाइक अ पिक्चर, जो एक घड़े की तरह या एक सुराही की तरह नजर आता है. इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड टू द शुगरी ट्रेल ऑफ नेक्टर, हाउएवर वंस दे आर इनसाइड दे आर ट्रैप्ड. और जो इंसेक्ट्स हैं वो उसकी जो शुगरी ट्रेल, मतलब जो उसके नेक्टर होता है, जो मतलब प्लांट्स में जहां से जो प्लांट्स का जो ये फ्लावर्स होते हैं, ये इनके जो नेक्टर मीन्स जो जिसके अंदर वो जूस होता है, फ्लावर का जो जूस होता है ना, जिसमें एक फ्लावर के अंदर जूस होता है. यू नो ना, देयर इज अ जूस इन एवरी फ्लावर. ओके, सो जिस पोर्शन में फ्लावर का जूस होता है दैट इज द नेक्टर ऑफ द प्लांट. ओके, सो जो एक इसमें एक शुगरी मतलब मीठा, इसके नेक्टर में एक मीठा, एक तरह से मीठा रस है जिससे कि इंसेक्ट्स हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और जब वो अट्रैक्ट होते हैं दैट मीन्स दे जस्ट ट्राई टू ईट दैट और सक दैट नेक्टर, तो जूस फ्रॉम दैट नेक्टर.
सो जब वो उस जूस को पीने के लिए, उसको सक करने के लिए उस फ्लावर के ऊपर या उस लीफ के ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है, तब जो लीफ है वो अपने आप को बंद कर लेता है, और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो उसी लीफ के अंदर रह जाता है। और जब वो तब दोबारा कब खुलता है, व्हेन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, जब वो पूरा जो इंसेक्ट है वो प्लांट खा चुका होता है या उसको डाइजेस्ट कर चुका होता है। क्लियर? सो द नेम इज पिक्चर प्लांट, एज इट लुक लाइक अ पिक्चर, ये एक पिक्चर की तरह या एक घड़े की तरह या सुराही की तरह इसकी जो शेप है वैसी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इन दिस पिक्चर PICTURE, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो इसकी जो इमेज है दैट इज ऑल्सो लाइक अ पिक्चर, एक घड़े की तरह है। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पिक्चर प्लांट। ओके, सो वेन एवर इट इंसेक्ट्स फीड ऑन इट, इट जस्ट क्लोज इट इटसेल्फ, एंड जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ही बंद रह जाता है, और वो कब दोबारा रीओपन होता है, व्हेन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। ओके, सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट blank is picture plant. So write down the first one, picture, PITCHER, picture plant, PLANT। जो वर्ड्स हैं दिस लेवल में दिए हुए हैं, एंड दे आर इन कैपिटल लेटर्स, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द स्पेलिंग्स इन कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो हमारे स्क्रेबल करके दिए हुए हैं, और जो सारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग देम इन द कैपिटल लेटर। क्लियर क्लास? द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लांट इज पिक्चर प्लांट, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पिक्चर, एक घड़े की तरह, एक सुराही की तरह नजर आता है वो। यस, मूविंग नेक्स्ट द सेकेंड वन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर कवर्ड विद अ हेयर लाइक शाइनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अ स्टिकी जूस। This sticky juice entraps insects and they are soon digested. Yes, देखिए जो नेक्स्ट प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जो उसके लीव्स हैं उसके ऊपर एक हेयरी, मतलब बाल की तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस, मतलब उसके जो लीव्स होते हैं थोड़े से हेयरी होते हैं, थोड़े से बाल वाले लीव्स होते हैं, और जो वो लीव्स होते हैं उसके ऊपर एक स्टिकी जूस, जो मतलब चिपचिपा सा जूस उस प्लांट के अंदर, उस लीव्स के ऊपर होता है, जो उसके हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इंसेक्ट आके मतलब उसकी खुशबू से उसके ऊपर आके बैठता है तो वो उसी के अंदर चिपका हुआ रह जाता है। ओके, क्योंकि वो उसकी स्टिकनेस से जो उसकी स्टिक वो उसमें चिपक जाता है, जिसकी वजह से उस पर निकल नहीं पाता, और जब निकल नहीं पाता और जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या उसको डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर? सो द सेकेंड वन इज, द नेम ऑफ द प्लांट इज sundew plant. The name of the plant is sundew, SUN, sun, DEW, dew, sundew plant. Okay, so write down the spelling. Sundew, SUNDEW, sundew. sundew plant में क्या होता है बेटा, कि जो इसकी लीव्स होती हैं उसके ऊपर एक हेयरी, एक बाल की तरह एक जो उसके लीव्स होते हैं वो थोड़े बाल वाले होते हैं, और उसके ऊपर एक स्टिकी जूस होता है, चिपचिपा सा जूस होता है, जिसकी जो स्मेल से है जो इंसेक्ट्स हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो उसको पीने के लिए, उसको सक करने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं तो वो उसी के ऊपर चिपके हुए रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो उससे हट नहीं पाते, एंड दैट प्लांट दैट एब्जॉर्ब्स और दैट डाइजेस्ट दैट इंसेक्ट। ओके, वो उस प्लांट जो है प्लांट वो इस इंसेक्ट को खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर? सो द नेम ऑफ द सेकेंड प्लांट इज sundew, SUNDEW, sundew. Clear? So moving next to the third one, the leaves of these plants have blades. They fold together and enclose the insect. A red sap digests the body. The plant dies after capturing 3 or 4 insects. Okay. देखिए जो नेक्स्ट इंसेक्ट है, अगर इफ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, उसमें देखो आप लंबे लंबे ब्लेड्स दिए हुए हैं, लंबी लंबी लाइन्स लीव्स के ऊपर बनी हुई है, दैट आर ब्लेड्स। तो वो उस लीफ के, सॉरी उस प्लांट के जो लीव्स हैं उसके ऊपर वो ब्लेड्स बने हुए हैं। जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर बैठता है तो जो वो लीव्स है वो बंद हो जाते हैं, और उस ब्लेड में फंस के जो वो इंसेक्ट है, जो वो रेड कलर का पोर्शन आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जो रेड पोर्शन इन दैट लीफ, दे जस्ट डाइजेस्ट, वो उस इंसेक्ट को खा जाता है जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर बैठता है। क्लियर? सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस
fly trap. So write down the answer. Venus, VENUS, Venus flytrap, FLYTRAP, Venus flytrap. जो उसमें ब्लेड्स होते हैं in this Venus flytraps, blades are there and the red step is there. Whenever an insect sits on that plant or on the leaf of that plant, it just closes itself and जो insect वो है जो उसके अंदर ही रह जाता है and जो उसका red portion है that digests the whole insect और वो पूरा का पूरा insect को खा जाता है. So the name of the plant is Venus flytrap. देखिए नाम से flytrap, मक्खी का trap. Okay, so Venus flytrap. The name of the plant is Venus flytrap. Clear? So this was your third plant. Now moving next to the fourth one. This plant looks like a striking cobra. The nectar in the long tongue attracts the insects. It drops into the water at the bottom of the hood and is digested. Okay. So देखिए the next plant जो इसके पिक्चर दी हुई है, it looks like a cobra. आपको देखने में भी लग रहा होगा जैसे वो ये कोई सांप की तरह, एक कोबरा सांप की तरह या एक नॉर्मल स्नेक की तरह, जैसे वो स्नेक जैसी इसकी लुक है. ओके, और ये जो उसके नीचे से दो जो उसके जो हेड है उसके पास से हमने देखा होगा 2 अलग अलग एक वेव सी निकल रही हैं जो वो उसकी टंग कंसीडर की जाती है, दैट इज इट्स टंग. और उसमें से जो उसमें जो नेक्टर है जिसके ऊपर वो जूस होता है उस प्लांट का, वो उसके अंदर से निकलता है. और जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो वो उसको सक करने के लिए आता है, तो वो जो उसका पानी है वो उसकी वजह से उसी में दबा रह जाता है और जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को खा जाता है. ओके, सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज कोबरा प्लांट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ कोबरा. ये कोबरा सांप की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज द कोबरा प्लांट. और इसके पास जो नीचे 2 अलग से लीव्स की निकली हुई हैं, that looks like the tongue of the cobra. Okay, and the nectar is present in that part, and whenever an insect or a fly sits on it, the water from that leaves or that 2 portions come out, और जो है वो प्लांट है जो उस फ्लाई या उस इंसेक्ट को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है. सो द नेम ऑफ योर फोर्थ प्लांट इज कोबरा प्लांट. सो द नेम ऑफ द फोर्थ प्लांट इज cobra plant because it looks like a cobra snake. Cobra, C-O-B-R-A, cobra plant, P-L-A-N-T, cobra plant. Because it looks like a cobra, ये cobra snake की तरह दिखता है, that's why the name is given as cobra plant. Clear? The last one is, this water plant has hollow traps that catch the animals such as worms and water fleas. If an insect touches the bristles of its dough, the trap opens and sucks the insect in. Okay, देखिए जो ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसमें एक खोखले से, मतलब जो उसके ऊपर जो लीफ उसके ऊपर एक खोखला मतलब खोखला में से खाली एक उसमें होल्स बने होते हैं. ओके, और जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है और उसको टच करता है कुछ भी, तो वो उस जो खोखला चीज होती है जो वो उसके अंदर होलो जो उसका एक तरह से होल होता है, वो जो उसमें जो कोई जो वॉर्म मतलब कीड़ा या कुछ भी उसमें अगर फंस के गिर जाता है तो जो प्लांट है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पूरा अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है. ओके, वो पूरे उस जो इंसेक्ट को वो सक करके खत्म कर देता है, उसको चूस के उसको खा जाता है. ओके, सो दिस प्लांट इज हैविंग अ स्मॉल शैलो होल्स ऑन इट्स लीव्स और ऑन इट्स बॉडी, और जिसकी वजह से जो वर्म्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ओके, छोटे छोटे जो जिसको हम वर्म्स होते हैं. ओके, और एक वाटर फ्लीज एक छोटी सी एक ट्रांसपेरेंट सी एक कीड़ा होता है. ओके, वो एक पियर शेप का होता है एंड इट लुक्स लाइक अ पियर एंड इट हैज 2 स्ट्रिंग्स, मतलब 2 उसके बाद स्ट्रिंग्स निकली होती है जिसकी वजह से वो वाटर में ब्रीदिंग या स्विमिंग करता है. ओके, सो वेन एवर वाटर फ्लीज और वर्म जस्ट सिट ऑन इट और जस्ट मतलब उसके ऊपर टच करते हैं, तो देन द हॉलो जो ट्रैप होता है, जो वो खोखली ट्रैप्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं एंड दैट प्लांट दैट ईट सक्स एंड ऑल दैट
animals, or sorry, all that worms and water fleas. Okay, so the name of this plant is bladderwort. So the name of this plant is bladderwort. So write down the spelling: BLADDER, bladderwort. WORT, bladderwort. So the name of this plant is bladderwort. Okay, the spellings a little bit different, so difficult. So class, just try to learn them. Okay, by dividing into parts. Okay, so this was your page number 41. Insect eating plants. These are the 5 plants. The name of the 5 plants that eat insects. जो कि एक कार्निवरस प्लांट्स हैं, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, वॉर्म्स खाते हैं, फ्लाइज खाते हैं. Okay, so this is the name of 5 different plants that eat insects. So the first one is pitcher plant, second one is sundew, then Venus flytrap, then cobra plant, and the last one is bladderwort. Okay, so this was your page number 41. Okay, so now moving next to the next page. Okay, so kindly open your books at page number 46. So just open your books at page number 46. That is animals and their habitats. अभी इससे पहले हमने plants के बारे में पढ़ा था. Now we are going to study about the animals and their habitats. Okay, so everybody kindly open your books at page number 46. That is animals and their habitats. Okay, so I'll just erase it. Page number 46, animals and their habitat. Okay, just give me a minute so that I can write the name of the chapter. The name of the chapter is animals and their habitat. What is the meaning of habitat? Page number 46. What is the meaning of habitat? कोई मुझे बताएगा what is the meaning of habitat? just सोचिए. आप बता तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट सोचिए. हैबिटेट मीन्स बेटा जिस भी कंडीशन में, जिस भी सराउंडिंग्स में, जहां भी वो रहते हैं, दैट इज देयर हैबिटेट. ओके, जैसे जो हम कैमल्स की बात करें, दे लिव इन द डेजर्ट्स, दैट इज देयर हैबिटेट. ओके, पेंगुइन्स दे लिव इन वाटर एज वेल एज इन द स्नो, दैट इज देयर हैबिटेट. ओके, सो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, जो उनका जहां वो रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, दैट इज देयर हैबिटेट. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज सम एनिमल्स. यू विल फाइंड एनिमल्स इन मोस्ट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ. देखिए, सबको पता है कि अर्थ के हर कोने में, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, वहां पे कोई ना कोई एनिमल तो प्रेजेंट होगा ही होगा. फ्रॉम द हॉटेस्ट डेजर्ट टू द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट्स, read about some animals living in different habitats and how they adapt themselves to their habitat. So आज हम जो अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट के बारे में जानेंगे कि वो किस एनवायरमेंट में रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद देम. द फर्स्ट वन इज पेंगोलिन्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेंगोलिन्स फर्स्ट. ओके, फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया, पेंगोलिन्स आर द मैमल्स विथ स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज. Okay, they are shiny animals and rarely seen. When in danger, they curl into a ball and let out a foul smell secretion. Okay, जो पेंगोलिन्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक छोटे छोटे स्केल्स बने होते हैं, जैसे कि एक नोकीले टाइप से स्केल्स बने होते हैं. वो स्केल्स क्यों बने होते हैं? ताकि कभी भी वो डेंजर में हो तो वो अपनी जो स्केल्स हैं उनकी हेल्प से अपने आप को बचा सके. जब भी उनको लगता है कि दे आर गोइंग टू बी अटैक्ड बाय समवन और दे आर इन अ कंडीशन जहां पे उनका सरवाइव करना मुश्किल है, सो व्हाट दे डू, दे जस्ट रोल देम. वो अपने आप को ऐसे रोल कर लेते हैं कि वो एक बॉल शेप में हो जाते हैं, जो रोल करके अपने राउंड शेप में अपनी बॉडी को कर लेते हैं. और जो उनका स्केल है, जो उसकी बॉडी के छोटे छोटे कट्स टाइप में स्केल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको उससे प्रोटेक्ट करते हैं. बिकॉज दे आर वेरी शार्प. जब कोई उसको टच करेगा, वो उनको एक तरह से उसको काटे, मतलब वो शार्प इतने होते हैं कि कोई उनको टच करेगा तो वो उसके हाथों में चुभेगा. क्लियर? एनी एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग. ओके, सो जो पेंगोलिन्स होते हैं, ये बहुत ही एक मैमल्स होते हैं. मैमल्स पता है क्या होता है? मैमल्स आर दोज हु गिव बर्थ टू द यंग वंस
and feed their child also. Okay, so इनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड वेन एवर दे फील दैट दे आर इन डेंजर दे जस्ट रोटेट देयर बॉडी एंड वो एक बॉल की शेप में हो जाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज वो अपनी बॉडी से एक तरह ऐसी तरह की इतनी गंदी स्मेल उनकी बॉडी से आनी शुरू हो जाती है, मतलब जब उनको लगता है कि वो उनके ऊपर कोई अटैक करने वाला है या उनकी जान खतरे में, तब वो करते हैं. तो अपनी बॉडी से एक ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है, मतलब जो जिसको स्मेल करेगा तो उनको लगता है कि जैसे ये ऑलरेडी मर चुका है, ये एक डेड एनिमल है. ओके, सो दीज आर पेंगोलिन्स. और ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका एंड एशिया. सो दे आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ईल्स. ईल्स के बारे में बेटा हमने कई बार डिस्कस किया है. ओके, इन लास्ट क्लास 3 ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. Eels are fish that look like snakes. They are 100 of different types of eels. Many species of eels live in warm, salt seas and oceans. Okay, जो eels है ये होती तो fish है, but ये दिखती किसके जैसी है? Snakes की तरह, ये सांप की तरह दिखती हैं. Okay, so these are the fish. Eels are also fishes, but they look like snakes. As you can see the picture that वो काफी लंबी है, वो snake की तरह लंबी सी है. Okay, there are 100 of different types of eels. Many species of eels live in warm, salty seas and oceans. Freshwater eels live in river, lakes and the ponds. Eels breathe through gills as other fishes do, but freshwater eels also can absorb oxygen from their skin. Okay, जो eels हैं, but actually they are fishes, but they looks like snakes. Okay, और कुछ जो eels जो कई अलग अलग habitats में रह सकती हैं, like कुछ हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स पॉन्ड्स में रहती हैं, कुछ हैं जो सॉल्टी सीज जो बहुत ही खारे सी होते हैं, मतलब बहुत इनका खारा पानी, जिन समुद्रों का बहुत ज्यादा खारा पानी सॉल्टी होता है उसमें रहती हैं. कुछ हैं जो कि ओशंस में रहती हैं और कुछ है जो गर्मी में भी रहती हैं. ओके, सो दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. ओके, तो अलग अलग की स्पीशीज हैं ये. ओके, ये अलग अलग तरह की होती है जो कि अलग अलग एनवायरमेंट में रहती हैं. एंड और ये ब्रीथ कैसे करती है? दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. सो लाइक फिशेज दे आर ऑल्सो हैविंग गिल्स. ओके, सो जो फ्रेश वाटर में ईल्स होती हैं वो अपनी स्किन से भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, मतलब उनकी स्किन होती है वो स्किन से भी एक तरह से सांस लेती हैं. क्लियर? सो दीज आर ईल्स. EEELS. सो EELS, ईल्स. The next one is leatherback sea turtle. Okay, leatherback turtles are named so because their shell is made of leather-like substance rather than the usual hard shell that other turtles have. They are the largest sea turtle species of the world. They migrate between the Atlantic and the Pacific Oceans. Okay, जो ये leatherback sea turtles होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े और बहुत बड़े, सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं. जो इनकी बैक होती है, जो इनका शेल होता है, दैट इज वो एक लेदर जैसा लगने वाला एक सब्सटेंस है, उससे बना होता है. बाकी सब जो टर्टल्स होते हैं वो उनकी जो शेल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, बट जो इसकी शेल होती है वो एक लेदर की तरह होती है. ओके, इफ यू टच दैट इट विल फील्स लाइक अ लेदर, मतलब उसको टच करेंगे तो एक लेदर की तरह शो होती है, सॉरी फील होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेदर बैक टर्टल. ओके, एंड द सेकंड मोस्ट थिंग इज ये सबसे बड़े सबसे लंबे और सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं. और इनकी जो लाइफ है, देखिए एक नॉर्मल टर्टल है, दे जस्ट लिव मोर देन 100 years. वो 100-150 साल जीते हैं, जो नॉर्मल कछुए जिसको हम बोलते हैं. ओके, बट जो ये लेदरबैक टर्टल्स हैं, ये उनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है. देयर लाइफ स्पेन इज वेरी बिग, अनलाइक अदर टर्टल्स. ओके, सो ये कौन कौन से ओशंस में रहते हैं? दे लिव इन Pacific and the Atlantic Ocean. They live in Pacific and Atlantic Ocean. Okay, so they are very large. Okay, they are very heavy. Okay, and they are the most. Their lifespan is very long. They live more than the मतलब जो normal turtles की life से भी ज्यादा इनकी life होती है. Okay, the second one okay, and the most important thing जहाँ से उनका नाम मिला है, that means they are having a shell जो कि that is made up of leather-like substance. Clear? So this is leatherback sea turtle. Now moving next to the fourth one, the Texas blind salamanders live in deep aquatic underground environment. Since they live in the total darkness, they have no need for vision and their eyes are reduced to 2 black spots. Because of their restricted range and water pollution,
द सैलमेंडर्स आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन एंड आर लिस्टेड एट एंडेंजर्ड। ये जो सैलमेंडर्स, द ब्लाइंड सैलमेंडर्स, द टेक्सास ब्लाइंड सैलमेंडर्स, ये क्या है बेटा, ये छोटे छोटे एक एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर दैट इट लिटिल बिट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, ये एक लिजर्ड की तरह दिख रही है। ओके, सो ये सैलमेंडर्स है, व्हाट दे आर, दे जस्ट ये सबसे नीचे जो समुद्र है या ओशन है इसमें सबसे नीचे रहते हैं। और ये क्योंकि सबसे नीचे रहते हैं तो वहां रोशनी तो नहीं है, अब वहां तो कोई लाइट नहीं जलती है ना बेटा, ओनली द जो सन की रेज होती है वो भी इतनी नीचे तक नहीं पहुंचती है पानी में। ओके, सो ये कहाँ रहते हैं, ये जो सबसे समुद्र के सबसे बॉटम पे, दीज सैलमेंडर्स दे लिव ऑन दैट एरिया। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज कि ये सैलमेंडर्स हैं, ये इतने अंधेरे में रहते हैं कि इनकी जो आईज हैं वो एक तरह से, मतलब उनकी आईसाइट है ही नहीं, दे आर ब्लाइंड, दे आर कंसीडर्ड एज ब्लाइंड, कि उनके पास आईसाइट है ही नहीं, उनके पास सिर्फ एक जैसे लगता है कि उनके आंखों के ऊपर जो आंख है उनकी, जहां पे आंख होती है, दे जैसे लगता है कोई छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब एक छोटे छोटे डॉट्स से बने हुए हैं, दे लुक लाइक दैट ओनली। ओके, सो मोस्टली प्रोबेबली दे आर कंसीडर्ड एज ब्लाइंड। पानी में सबसे नीचे रहने की वजह से दे आर कंसीडर्ड एज ब्लाइंड। ओके, सो एज यू नो द वाटर पोल्यूशन इज वेरी हाई। ओके, सो इस वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या है, जो इनकी एक्सटिंक्शन है, मतलब जो ये है ये एंडेंजर्ड हो गए। एंडेंजर्ड मीन्स दैट दोज एनिमल्स दैट जो अबाउट एक्सटिंक्ट है, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जिनके स्पीशीज खत्म होने वाले हैं, सो दे आर कंसीडर्ड वन ऑफ द एक्सटिंक्टिंग एनिमल्स। ओके, दे आर कंसीडर्ड वही, और जो एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में है उनमें इनका नाम भी है। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन दे आर नॉट एबल टू लिव एंड सर्वाइव इन दैट in the water. Okay, so now moving next to the next one, that is the African wild dogs. Okay, are also known as painted dogs because of their patched fur, have big rounded ears. They are mostly found in eastern and the southern Africa. They have only 4 toes on each foot, unlike other dogs have 5. Okay, they move in the packs of 15 to 60 dogs and hunt birds and rodents for food. ओके, सो जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स होते हैं, अफ्रीकन, ये देखिए नाम से क्लैरिफाई हो गया दैट अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, दैट मीन्स दे लिव इन अफ्रीकन एरिया। ओके, सो जो ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो इनको एक पैच्ड, मतलब इनकी जो बॉडी है उनकी जो फर के ऊपर एक तरह से ऐसे पैचेस बने होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैच्ड एनिमल्स ऑल्सो। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज देयर, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, जो इनके ईयर्स हैं दे आर इन दिस शेप, जो ऐसे राउंड शेप में होते हैं। ओके, सो देयर इज ईयर्स इन राउंड शेप। ओके, एंड सबसे अलग चीज जो इनकी क्या है, आपको पता होगा, इफ यू आर हैविंग अ डॉग इन योर हाउस, दैट यू कैन सी दैट ऑल द डॉग्स हैव 5 toes in their legs. जो हर जो लाइक ह्यूमंस जो डॉग्स होते हैं उनके भी 5 पंजे, मतलब 5 टोज होते हैं, बट दीज अफ्रीकन डॉग्स हैव ओनली 4। ओके, और ये 15 to 60, मतलब 15 से 60 डॉग्स हैं जो इकट्ठे एक झुंड में चलते हैं, और ये बर्ड्स को, चिड़ियों को, और जो रोडेंट्स में जो चूहे जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो ये रोडेंट्स दे जस्ट फीड ऑन रोडेंट्स एंड बर्ड्स। ये 15 to 60 डॉग्स इकट्ठे एक झुंड में चलते हैं और ये बर्ड्स और रोडेंट्स को मार के अपना खाना, अपना मील बनाते हैं। क्लियर? सो दीज आर द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स एंड दे आर फाउंड इन अफ्रीका। Clear? Moving next to the next one. The next one is cleaner resi. Cleaner resis. तो cleaner resi क्या है? The W is silent in resi. The W is silent. So the answer is cleaner resi. Cleaner resi or the cleaner fish live in the ocean and are well known for their role in the removal of parasites from the larger carnivorous fishes. The larger fishes allow them a free passage into their cavernous mouths and gill chambers, in which the cleaner resi feeds upon leftovers and parasites. Okay, so ये cleaner resis जिसको बोला जाता है, cleaner resis बोला जाता है, ये क्या है, फिशेज हैं, ये छोटे फिशेज होती हैं जो कि इनको क्लीनर, इसका नाम से देखिए क्लैरिफाई हो रहा है, क्लीनर मतलब जो क्लीन करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो बड़ी फिशेज होती हैं उनके माउथ में, मतलब जो हियर इट इज रिटन एज कैवर्नस माउथ्स। कैवर्नस माउथ मीन्स जो एक मतलब खौफनाक,
ठीक है, खौफनाक जो उनके माउथ के अंदर ये जाके, और ये उनके माउथ के अंदर जाके जो उनके अंदर जो उनके गिल्स उसमें जो पैरासाइट्स होते हैं या जो उन्होंने एनिमल्स खाए होते हैं, उनके जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, उनको उसमें से क्लीन करती है, उनको साफ करती है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द क्लीनर रेसेस। Okay, so they just clean all the parasites that are present in the mouths of the big fish. किसी छोटे फिश की नहीं, बड़ी फिशेस जो होती हैं उनके माउथ में जाके उनके अंदर जितने भी लेफ्ट ओवर्स जो बचा हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको खा के इनका पेट है जो वो क्लीन करती हैं। ओके, द लास्ट वन इज boa constrictors. Boa constrictor. So boa constrictors are large non-poisonous snakes, okay, found in tropical rainforests. Boas will eat almost anything they can catch, including birds, monkeys, and wild pigs. Okay, they kill their prey by coiling around them so tightly that the animals cannot breathe. Okay, despite this deadly strength, some species of boa constrictors are quite popular as pets. Okay, so ये boa constrictors क्या है बेटा? These are the form of a snake. ये जो snakes की तरह है, not snake की तरह, this is a snake. Okay, but जो इनकी body है, बट इनके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता, नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। दीज आर बोआ कंस्ट्रिक्टर्स आर नॉन पॉइजनस स्नेक, मतलब इनके अंदर कोई जहर नहीं होता। ओके, बट इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये बड़े से बड़े मंकी, पिग्स और बर्ड्स को इजिली पकड़ के खा जाते हैं। मतलब मंकीज एंड पिग्स, दे कैन इवन ईट पिग्स, वाइल्ड पिग्स एंड मंकीज ऑल्सो। कैसे? जब इनके पास पॉइजन नहीं है तो ये कैसे खाते हैं? ये कैसे खाते हैं बेटा? इनकी जो बॉडी है बहुत स्ट्रांग होती है। जब भी इनको किसी एनिमल को खाना होता है तो उससे पहले वो उसके ऊपर अपने आप को पूरा लिपेट लेते हैं और उसको इतनी जोर से वो दबा लेते हैं कि वो उनकी ब्रीथिंग, मतलब वो सांस नहीं ले पाते एंड दे जस्ट डाई। और उसके बाद जब वो एनिमल मर जाता है, उसके घुटने के बाद, उसके अंदर दम घुटने के बाद, दे जस्ट ईट देम, वो इसको पूरा खा जाते हैं। ओके, सो ये बाओ कंस्ट्रिक्टर्स हैं। इनको पेट्स भी कई लोग हैं जो इन द रीजन ऑफ, ये कई लोग इसको एज अ पेट भी रखते हैं। इन स्नेक्स को पेट्स भी रखा जाता है, रादर देन कि कितने स्ट्रांग है, बट सम जो पीपल हैं जो दे कंसिडर इट एज देयर पेट्स ऑल्सो। Okay, so these are the various animals and we have discussed about their habitats also. Okay, so there's a quick quiz, okay, given after this. So that is your homework. You are going to solve this quiz by yourself only, and we are going to discuss this quiz in our online session. Okay, class. So I hope you understood this animal and their habitat, that it is quite a very interesting chapter. So I hope आप कुछ समझ में आया होगा, and if you feel any kind of doubt, then you can clear in your online session. Okay, class. So till then, everybody have a great day.